Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform, and today we are going to look into a chapter, The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. This particular story is a part of ICSC Class 9 new syllabus. So without wasting any more time, let's get into the chapter. But before starting, if you have not subscribed to the channel, then please do subscribe and hit the bell icon so that you never miss a single update, because your subscription is my motivation, right? So right now, get into the chapter. The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an एंग्लो इंडियन राइटर. और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का थीम अगर मैं आपको बताऊं, तो स्टोरी में ये बताया गया है कि एक गलत इंफॉर्मेशन, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैसे इंसान को, इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर कैसे इंसान को हैरस करता है, जिसमें नाथू इज द मेन कैरेक्टर. एंड नाथू इज वेरी इरिटेटेड नाउ. ही इज द स्वीपर बॉय ऑफ पीपल नगर बैंक. नाउ पीपल नगर, दिस इज एन imaginary place by Ruskin Bond. Like in the stories of R.K. Narayan, we would get Malgudi. Malgudi is an imaginary place imagined by R.K. Narayan. Similarly, in most of the stories of Ruskin Bond, we get this name, we get this imaginary place, People Nagar. So the setting of this particular story is People Nagar, and Nathu is the central character. Nathu is the main character who is the sweeper boy of People Nagar Bank. अभी जो है नाथू बहुत इरिटेटेड है. ठीक है, देखो. नाथू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही Nathu grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank. So the word grumble, it gives us a sense of irritation. It gives us a sense of irritation. Okay, that means Nathu is very irritated right now, and so he grumbled to himself when, as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by said Govindram. MCQ: Who owned the bank? People Nagar Bank, said Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly. ये भी MCQ के लिए बहुत important है. And the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. So Nath is very irritated right now. He does not want to work right now, but then also he is working because he is doing his job, he is doing his service. So बहुत जोर से वो ब्रूम जो है, झाड़ू जो है, उससे साफ कर रहा है, और पूरा जो धूल है, जो डस्ट है, वो ऊपर उठ रहा है. फिर से वहीं उसी जगह पे जाके वो जो धूल है वो बैठ रहा है. ठीक है. Rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against the dustbin, this particular face also gives us an indication of Nathu's irritation. Sitaram, the washerman's son, passed by. तो उस समय कौन वहां से गया? सीताराम. सीताराम कौन है? सीताराम है उस गांव में जो वॉशरमैन है, उनका बेटा. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, यानी कि कपड़ा लाता सब धो के वो कस्टमर्स के घर में जा रहा है वो डिलीवरी करने. He had a bundle of freshly pressed cloths balanced on his head. उसके सर पे एक बहुत बड़ा हेवी एक बंडल ऑफ क्लॉथ्स है. Don't raise such dust, he called out to Nathu. अरे भाई, ऐसे तुम क्यों साफ कर रहे हो? आप तुम तो पूरा पूरा धूला एकदम उड़ रहा है. Are you annoyed because they are still refusing to pay an extra 2 rupees a month? So यहाँ पे जाके हम लोग को रीजन पता चलता है कि नाथू इरिटेटेड क्यों है. नाथू इसलिए इरिटेटेड है नाथू इसलिए इरिटेटेड है क्योंकि उन्होंने बैंक अथॉरिटी को कहा था कि उनका जो सैलरी है वो हर महीने 2 रुपए ज्यादा देने. बट द बैंक authority is refusing his proposal. This is the reason Nathu is very irritated right now, and this is how he is working. I don't wish to talk about it, like he is like मतलब इतना he has given up. ओके मुझे इस बारे में बात नहीं करना है. कंप्लेन द स्वीपर बॉय. आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, यानी कि तुम 2 रुपए का बात कर रहे हो एक्स्ट्रा. मुझे हर महीने जो सैलरी मिलता है अभी तक मुझे वही नहीं मिला. एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ. याद करके रखना, एमसीक्यू आ सकते हैं, यानी कि जिस महीने के बाद यहाँ पे हो रहा है उस दिन 20th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ था. तो 20 तारीख हो गया, अभी तक मुझे मेरा सैलरी नहीं मिला, तुम एक्स्ट्रा
₹2 की बात कर रहे हो? Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. So this is the decision taken by Nathu कि मुझे पैसा जब भी मिल जाएगा मैं ये काम छोड़ दूंगा. Not another week I work in this place. और पैसा मिलने के बाद एक हफ्ता भी ज्यादा मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा. And Nathu banged the pan against the dustbin several times. Why? This is the outburst of frustration, outburst of anger, outburst of irritation. कि बार बार वो जो पैन है डस्टबिन में उसे बैंग कर रहा है, just to emphasize his point and giving himself confidence. Well, I wish you luck, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. ठीक है, कोई बात नहीं, तुम काम छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी देखूंगा, अगर तुम्हारे लिए कोई काम होगा, तुम्हारे लायक कोई काम होगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा. So we are getting the characteristic of Sitaram also. Sitaram is very helpful. Okay, नोट डाउन करते रहना. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulder. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर का एक इंडिकेशन दिया जा रहा है. वो जो हेवी लोड जो वो अपने सर पे लिया था उससे सीताराम का सर प्लस शोल्डर आधा ढक चुका था. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. यहाँ से भी MCQ आ सकता है. कौन सा घर पे उनको पता चला? फोर्थ हाउस, यानी कि वो कपड़ा लाता जो है वो डिलीवर कर रहा था. पहला हाउस, मतलब सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस में उन्होंने जब गया, सीताराम जब पहुंचा वहां पे उनको पता चला कि दैट पर्टिकुलर lady also was in need of a sweeper boy. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. अब ये क्यों कहा सीताराम ने? क्योंकि अभी सीताराम को नाथू ने कहा कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं यही काम छोड़ दूंगा. तो अब सीताराम जो है उसने ये सोचा कि आज 20 तारीख है, अभी 10 दिन बाकी है ये महीना खत्म होने में, 10 दिन तक तो उनको जॉब मिली, पैसा मिल ही जाएगा. और वहां पे जब मिल जाएगा तो नाथू जो है वो उस बैंक का काम छोड़ देगा, फिर वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा. He is with the bank just now, but they are not giving him his pay and he wants to leave. So see, the information passed to the lady by Sitaram is fine, is quite okay. सीताराम को नाथू ने जो कहा था, सीताराम उस लेडी को बिल्कुल वही बात कहा, उसने कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है नहीं किया इंफॉर्मेशन का. Is that so? Said Mrs. Srivastava. So who was the lady of the fourth house? Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसे बोल देना कि कल आके वो एक बार मुझसे भेंट करे. ठीक है. And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his away. So see, listening to her, Sitaram became very happy. चलो मैंने कुछ तो किया अपने दोस्त के लिए. और फिर उन्होंने, सीताराम जो है वहां से निकल गया. Mrs. Sivastava had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook to be not to be late with the midday meal. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कि जब शॉपिंग करने गया मिसेस श्रीवास्तव तो उन्होंने आया को और कुक को क्या इंस्ट्रक्शन दिया. देन शी सेट आउट फॉर पीपल नगर मार्केट. कहाँ पे शॉपिंग करने गया? पीपल नगर मार्केट. मार्क करते रहना, ये सब MCQ आ सकता है. टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द cloth shop. Nikki, this is a kind of habit of Mrs. Srivastava to go to the shops and like look for new clothes. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar. MCQ, tamarind tree ka location. And it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan. Okay, दोस्त का नाम MCQ, Mrs. Bhushan, sheltering from the heat. It gives us a sense of summer season. तो हालांकि किस मतलब मंथ कौन सा चल रहा है ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो सेंटेंस है शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है ये लगभग मान लो कि मार्च अप्रैल में, क्योंकि उसी टाइम जो है बहुत ज्यादा गर्मी होता है.
Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. MCQ. Okay. She complained of the summer which she affirmed was definitely the hottest in the history of पीपल नगर. तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस भी क्लाइमेट को, पीपल नगर का जो क्लाइमेट है उसे इंडिकेट कर रहा है. She often showed Mrs. Srivastava a sample of cloth she was going to buy. कि देखिए मैं इस टाइप का जो कपड़ा है वो खरीदने के लिए जा रही हूँ. एंड फॉर 5 minutes दे डिस्कस्ड इट्स शेड टेक्सचर डिजाइन. मार्क करते रहो. फॉर 5 minutes यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है. ठीक है. टाइम ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग दे डिस्कस्ड अबाउट द शेड टेक्सचर एंड डिजाइन ऑफ द क्लॉथ. और एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि what did they discuss about the cloth for 5 minutes. They discussed about the shade, texture and design of the cloth. Having exhausted this topic, तो इस टॉपिक में बात करते करते वो लोग जब एग्जॉस्टेड हो गया तब क्या हुआ. मिसेस श्रीवास्तव said, do you know my dear that said Govind Ram's bank cannot even pay its employees. So this is the first distraction. ये फर्स्ट जो है, जो न्यूज है, जो सही न्यूज है उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि नाथू को पैसा नहीं मिला. लेकिन यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया दैट द बैंक इज अनेबल टू पे टू हिज एम्प्लॉयज, सब एम्प्लॉयज को. Only this morning I heard a complaint from the sweeper who has not received a wages for over a month. देखो यहाँ पे मार्क करके रखो ये एक नंबर. ठीक है. कि पहला जो डिस्ट्रैक्शन था वो क्या हुआ कि नाथू ने ये कहा कि उस महीने 20 तारीख हो गया उसे सैलरी नहीं मिला. लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसेस भूषण को प्रोवाइड किया गया बाय मिसेस श्रीवास्तव कि कुछ महीने हो गया नाथू इज नॉट बीइंग पेड. शॉकिंग, remarked Mrs. Bhushan. If they cannot pay the sweeper, they must be in a bad way because एक sweeper जो है उन्हें ही सबसे कम सैलरी मिलेगा. तो अगर वो बैंक अगर स्वीपर को पैसा नहीं दे पा रही, इसका मतलब बैंक की जो हालत है वो बहुत खराब है. none of these none of the others would be getting paid either. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband. यानी कि मिस्टर भूषण को ढूंढने गई. कौन? मिसेस भूषण. who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop. ये भी important है. Where was Mr. Bhushan sitting? He was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop talking with the owner. और क्या कर रहा था वो वहां पे? ओनर से बात कर रहा था. So there you were, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? अरे मैं तो तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ आपको. आप कहाँ चले गए थे? Nowhere, replied Mr. Bhushan. Mr. Bhushan ने reply किया, कहीं पे भी नहीं. Had you remained stationary uh, in one shop, I might have found you. But you go one shop to another like a bee in a flower garden. So this is a commentary on women behavior also. मिस्टर भूषण उन्हें अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि अगर तुम एक दुकान पे रहोगे तब ना मैं तुम्हें ढूंढूंगा. तुम तो एक इस दुकान से उस दुकान, इस मार्केट से उस मार्केट पे घूमती रहती हो. सो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा. सो दिस इज अ कमेंट्री ऑन women nature or women behavior. Don't start grumbling. अब प्लीज झगड़ा मत करो. The heat is trying enough. I don't know what's happening to people Nagar. Even the bank is about to go bankrupt. यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन को गलत कर दिया गया. ये गर्मी जो है ये एनफ है. और मुझे पता नहीं पीपल नगर के इंसानों को, लोगों को क्या हुआ. इवन द बैंक इज गोइंग टू go bankrupt. What's that? Said Kamal Kishore. Sitting up suddenly. Which bank? कौन से बैंक के बारे में आप बता रहे हो? Why? The People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. अब ये मत बताना आप कि वहां पे आपका भी अकाउंट है. Because they have stopped paying to its employees. No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition. दुकान में एक low partition है. To the keeper of the barber shop next door. वहां पे एक barber shop भी है. barber shop का जो ओनर है उसे बुलाया. किसने बुलाया? कमल किशोर ने. दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? यहाँ पे लेटेस्ट मतलब न्यूज. और दीपचंद इज द ओनर ऑफ द बार्बर शॉप. ठीक है. द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स. यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन. सबसे अच्छा होगा कि जल्द से जल्द तुम वहां से अपना पैसा उठा लो. सो कमल किशोर did not have any account in people nagar bank, but his
नेबर दीपचंद हु इज द ओनर ऑफ द बार्बर शॉप उनका है। दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, यहाँ पे से भी एमसीक्यू आ सकता है, was so startled that his hand shook and he nicked his customers right ear, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि वो न्यूज सुन के वो इतना घबरा गया बेचारा कि कस्टमर जिसका हेयर कटिंग कर रहा था उसका राइट ईयर जो है वो भी उन्होंने कट कर दिया। द कस्टमर yelped इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोनिंग आउट ऑफ पेन ऑफ द कस्टमर with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. So this sentence also indicates that the man, the gentleman जो वहां पे बैठ के हेयर कट करवा रहा था उनका भी अकाउंट है या फिर पैसा है पीपल नगर बैंक पे। दिस इज द रीजन ही इज इन डिस्ट्रेस आफ्टर हियरिंग द न्यूज दैट बैंक जो है उनका बिजनेस जो है बैंक का वो खत्म होने वाला है। With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. वहां से वो कहां पे गया? सीधा जनरल मर्चेंट के स्टोर पे गया था। एमसीक्यू क्यों? क्योंकि वहां पे उनको किसी को कॉल करना था। किसे कॉल किया? सेठ गोविंद राम को कॉल किया। सो दिस सेंटेंस ऑल्सो आई मीन गिव्स अस अ सेंस दैट द जेंटलमैन एंड बैंक का जो ओनर है सेठ गोविंद राम, दे नो ईच अदर। ओके, द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ जो है वो घर में नहीं था। वेयर वॉज ही देन? सो दिस इज द डाउट अब उनके दिमाग में आया। पहले तो उन्होंने ये सुना कि बैंक जो है बैंक का हालत बहुत ही खराब है, फिर सेठ गोविंद राम को कॉल किया, वो भी नहीं है, तो कहाँ गया वो? द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। एमसीक्यू, oh was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown. अब उनको बिलीव नहीं हुआ, वो फिर से उस दुकान पे कहा कि परिंदा जो है वो उड़ गया। हु इज द बर्ड हियर? सेठ गोविंद राम। ठीक है, द बर्ड हैज फ्लोन मतलब गोविंद राम जो है वो भाग गया है। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट द टाउन। कैसे? देखो न्यूज जो है वो डिस्ट्रॉट हो रहा है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। फिर चेकबुक लेने गया क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि जितना पैसा है पीपल नगर बैंक में उनके सेविंग्स अकाउंट में वो उठा लेगा। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions. To the betel seller, betel मतलब पान होता है, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. यानी कि वहां पे जो बेगर है उसके पास भी ये न्यूज जो है वो चला गया। ओल्ड गणपत, द बेगर, नेम ऑफ द बेगर इज ओल्ड गणपत। ठीक है, had a crooked leg। एमसीक्यू आ सकता है, he had been squatting on the pavement for years। उनका crooked leg है, सो सालों से वो बस पेवमेंट पे बैठा रहता है। कॉलिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स आर्म्स मीन्स यानी कि जो वो बेगर है तो जो भी लोग उन्हें भिक्षा जो है देगा। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक। अब किसी ने भी कभी नहीं देखा कि ओल्ड गणपत चल रहा है, बिकॉज ही हैज क्रूक लेग्स। But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. लेकिन जब as soon as old Ganpat comes to know that the bank is collapsing, he just stands up and he starts running towards the bank. So यानी कि यहाँ पे गणपत का, ओल्ड गणपत का कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है कि he is dishonest, right? वो dishonest था। अब तक he has been fooling the people of people nagar for long time. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings in that particular bank। MCQ, men stood in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes, or drought. And the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. So all the people were very tensed and they started discussing about the bank, what would happen to their money. Some boasted of their farsightedness। अब कोई कोई इंसान जो है, लोग जो है, दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बैंक पे पैसा मत रखो, मुझे पता था कि ये बैंक चलने वाला नहीं, इसलिए मैंने पैसा रखा ही नहीं।
congratulating themselves on having already taken out their money. कुछ कुछ लोग जो है उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग मुझे पता था ये होने वाला है, इसीलिए मैंने सारा पैसा पहले ही उठा लिया. और on never having put any in, others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excess indulged in by Seth Govind Ram. द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट. अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि सेठ जो है उन्होंने पूरा स्टेट छोड़ दिया. सेठ वन, ही हैड फ्लेड द कंट्री. किसी ने कहा कि उन्होंने पूरा देश छोड़ दिया. Said another, he was hiding in People Nagar. Said the third, and he had hanged himself from the tamarind tree. Said fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. ये कुछ एक्सट्रीम लेवल का र्यूमर हो गया. अब किसी ने कहा अरे बाबा उन्होंने तो फांसी लगा लिया अपने आप को उसी टैमरिन ट्री में, आज सुबह स्वीपर बॉय got his dead body. By noon, the small bank had gone through all its ready cash. ठीक है, यानी कि सब लोग वहां पे चला गया पैसा उठाने, तो बैंक जो है खाली हो गया. एंड harassed manager, why the manager was harassed? Because all the people went to the bank to withdraw their money together. Was in dilemma, he was in a confusion state of mind. He could not understand what he should do. Emergency funds could only be obtained from the bank some 30 miles distant, and he was not sure he could persuade the crowd to wait until then. तो यहाँ पे मैनेजर को बताया जा रहा है कि ही इज वेरी विटी ऑल्सो, कि 30 माइल दूर एक बैंक है, वहां से जाके पैसा लाना पड़ेगा. ये 30 माइल जो है यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है. लेकिन उन्होंने उसको, आई मीन द बैंक के जो मैनेजर है, ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि पीपल नगर का जो लोग है, जो पीपल है, उन लोगों को मतलब शांत नहीं किया जाएगा. एंड देयर वाज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर. सो समहाउ डल लेक में वो हाउस बोट में था. पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे. उन सबको कहा गया कि आप लोग आज घर चले जाओ, आप लोगों को कल पैसा मिल जाएगा. बिकॉज they have to go to 30 miles away to another bank to collect the emergency fund, which was impossible right then. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, give us our money or we will break in. jaldi se. तो किसी ने भी, कोई भी घर नहीं गया, बैंक के बाहर सबको एकदम इकट्ठा हो गया और चिल्लाने लगा कि हम लोगों को हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो बैंक तोड़ देंगे. एंड फिच द सेट, वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर. अब उन लोगों ने ये भी नारा लगाया कि सेठ को भी बाहर निकालो, मुझे हम लोग को पता है कि बैंक के अंदर किसी सेफ डिपॉजिट लॉकर में he is hiding himself. Mischief makers who did not have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated the mood. कोई कोई लोग था जिनका कोई पैसा भी नहीं था बैंक में और आपका अकाउंट भी नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया, बस मतलब अदर पीपल दोज हु आर वेरी एंग्री एट दैट टाइम, दे जस्ट फ्लेम देम कि हाँ नहीं बैंक तोड़ना पड़ेगा, ये वो करके उन लोगों को और भी बहका दिया. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अभी घर चले जाओ, आप लोग कल आओ, कल आप लोग को पैसा मिल जाएगा. We want it now, chanted some of the crowd. हम लोग को अभी पैसा चाहिए, now, now, now. And the brick hurtled through the air and crashed through the प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर. अब उसी भीड़ में क्या हुआ कि किसी ने एक पत्थर उठाया और सीधा मार दिया बैंक में, और बैंक का जो ग्लास डोर था वो टूट गया. ओके, सो it's a, just gives us a sense of agitated mob. अब हो गया, अब यहां तक हो गया एक दिन का कहानी. अब ये जो पार्ट है यह है नेक्स्ट मॉर्निंग का, ठीक है. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hand in a gesture of horror and disgust, he cried, hooligans, sons of donkeys, as though it is not bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. अच्छा आप लोग, आई मीन गधे के बच्चे, हाँ आप लोग को शर्म नहीं है, पहले तो आप लोग पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से मेरा काम इतना बढ़ गया. क्यों? राइट नाउ नाथू हैज टू स्वीप आउट द फ्रेगनेंस ऑफ द ग्लास.
ही smote the steps with his broom scattering the refuse. देखो जब स्टोरी शुरू हुआ था तब swept वर्ड यूज किया गया था, यहाँ पे smote यानी कि smote is a kind of like knocking and making साउंड। तो यहाँ पे वो इतना जोर से, नाथू यहाँ पे इतना जोर से ब्रूमिंग कर रहा था कि वहां पे आवाज हो रहा था। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉय, दैट मीन्स सीताराम, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल। ही वाज ऑन हिज बाइसाइकिल। MCQ, are you ready to take up a new job from the first of the next month? You will have to, I suppose, नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, क्योंकि अब तो तुम्हें नेक्स्ट महीने से नया काम ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक जो है वो खत्म होने वाला है। हाउ इज दैट, सेड नथु, कैसे? हैव नॉट यू हर्ड, क्या तुम्हें पता नहीं? वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। एंड ही वेप्ट चीयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पीड अवे ऑन हिज बाइसाइकिल। ठीक है, बेहतर होगा तुम यहीं पे रुक जाओ और देखो कि हाफ ऑफ द पीपल नगर दे आर कमिंग एंड दे विल बी एंड दे आर डिमांडिंग देयर मनी। तुम जब ये अपने आंखों से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये बैंक जो है इट इज राइट आउट ऑफ बिजनेस। So next month onwards you will have to take another job. Okay, Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself, वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था, sense of irritation. When he had finished his work he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. उनका जब काम हो गया तो क्या हुआ, वो हाई स्टेप पे बैठ गया कि मैनेजर को आने दो, आज तो मैं पैसा लेके ही छोड़ूंगा। He was determined to get his pay. यहाँ पे पे मतलब उनका सैलरी जो है, ठीक है। Who would have thought the bank would collapse? अब किसे पता था कि बैंक जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। He said to himself, उन्होंने खुद से कहा, and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happen. मैं तो ये मतलब सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू द थीम्स ऑफ द स्टोरी। लाइक फर्स्ट one's rumors can be fatal, so only one rumor harassed all the people of the people nagar, even the manager of the bank. So this is very important, like rumors can be fatal. Next one, appearance differs from reality, like it is completely applicable for old Ganpat. Okay, he is known to have a crooked leg and who has not been, like I mean, who has been sitting over there years after years. But when he heard the news that the bank is going to collapse, he just stood on his knees and he started running. And it startled, this incident startled the people of People Nagar. Okay. अब थर्ड जो है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे हो सकता है कि नाथू जो है उसे पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? नाथू को पैसा नहीं मिल रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी नाथू वहां पे काम कर रहा है। सो समहाउ ही हैज द ट्रस्ट दैट द बैंक अथॉरिटी विल इंक्रीज माई सैलरी। लास्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, कि अब स्वीपर जो है वो पुअर है लेकिन उसके बावजूद भी बैंक उसे पैसा नहीं दे रहा है। और लाइक ओल्ड गणपत का बात अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो वो तो डिसऑनेस्ट है ही, लेकिन पॉवर्टी जो है उनको ये रियलाइज नहीं करने दिया कि भाई तुम इतना दिन से नाटक कर रहे हो। तो इस तरह जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप द कंसेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर। सो प्लीज कमेंट, आप लोगों को और कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।